اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اللہ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کیسا نہیں کہنا چاہیے؟ یہ آگے قرآن پاک کی آیات سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب کہا جائے کہ اللہ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اگر ویسا کہا جائے گا تو بندے کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ایمان ضائع ہو گیا تو آگے اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اب یہ کتنی اہم بات ہے، دیکھیں، اپنے ہم جائزہ لیں، مشاہدہ کریں کہ کیا ہم اللہ کو کہیں ایسا تو نہیں کہتے جس سے ایک طرح سے منع کیا گیا ہے۔ ایسا کہیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ بس یہ بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے لیے الاسماء الحسنی آتا ہے، یعنی اللہ کے حسین ترین بہترین نام۔ اس سے مراد وہ صفات خداوندی ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں۔ الاسماء الحسنی یہ صفات خداوندی ہے۔ اس کو سبقت اللہ بھی کہا گیا ہے سورۃ بقرہ کی 135 نمبر آیت میں، جس میں اللہ کا رنگ اپناؤ۔ وہ کیا اپناؤ؟ اللہ کی اس صفات کو اپنانا ہے، یہ ہے اللہ کا رنگ۔ اس جہت سے آپ نے اکثر جگہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے دیکھے ہوں گے قرآن پاک میں۔ اکثر شروع میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام آتے ہیں۔ وہ قرآن میں نہیں ہیں، وہ قرآن سے باہر ہیں۔ ویسے لوگ جو قرآن پرنٹ کرتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں۔ بعض جگہ ان میں سے المضلو یا المدلو یعنی گمراہ کرنے والا بھی درج ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام تو نہیں آیا، قرآن میں کہیں نہیں آیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اسے ان آیات سے اخذ کیا گیا ہے جن میں من یضلل قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ اللہ کا نام ہے، مگر یہ الفاظ آئے ہیں، وہاں سے یہ چیز اخذ کی کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ الاسماء الحسنی میں شامل کر کے وہاں جو ہیں وہاں لکھ دیا گیا۔ ان الفاظ یا یہ جن آیات میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں، ان کا صحیح مفہوم پہلے آ چکا ہے۔ اس مفہوم کے پیش نظر سمجھتے ہیں کہ اللہ کو المدل گمراہ کرنے والا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ دلوں کا کہا ہے نا، یا جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے، یہ چاہے میشہ یہ قانون مشیت ہے۔ اس سے مراد کیا لینا ہے؟ قانون مشیت لینا ہے آپ نے۔ تو اس کے قانون مشیت کے مطابق بندہ گمراہ ہوتا ہے، قانون مشیت کے مطابق بندہ ہدایت پاتا ہے۔ قانون مشیت بتا دیا گیا کہ عقل و بصیرت سے کام لینا، ارادہ اور اختیار بندے کو جو دیا گیا ہے۔ بار بار یہ بات عرض کی ہے۔ تو پھر یہ اللہ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ وہ تو الہادی ہدایت دینے والا ہے، اور جو ہدایت ہو وہ المدلو کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہدایت دینے والا ہے وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کے ساتھ دو رخ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے کس طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ایک طرح سے غلط مطلب لیا، اور کس طرح ہم قادر مطلق کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ وہی اللہ کہ ایک جگہ وہ ہدایت دینے والا ہے، اسی جگہ وہ گمراہ کرنے والا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ قرآن کریم میں مدلون گمراہ کرنے والے شیطان کو کہا گیا ہے۔ گمراہ کرتا ہے وہ شیطان کرتا ہے، ہم نے اللہ کے بارے میں کہہ دیا، تو پھر کیا بنے گا؟ آپ خود سوچ لیں۔ سورہ قصص میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبتی کو مکہ مار کا ڈھیر کر دیا تو اس کے بعد کہا کہ ھذا من عمل الشیطان انہ عدو ضل مبین۔ یہ ہے ھذا من عمل الشیطان انہ عدو ضل مبین، یعنی کہ قصص کی 15 نمبر آیت ہے۔ یہ تو شیطان کا کام ہے، بے شک وہ انسان کا دشمن اور کھلا ہوا مدلن گمراہ کرنے والا۔ دوسری جگہ ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، سورہ نساء کی 60 نمبر آیت ہے۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کو دور کی گمراہی میں پھینک دے، یعنی کہ بہت گمراہ کر دے۔ یہ شیطان کے بارے میں ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کام یعنی کہ گمراہ کرنے کو
कुरान शैतान का अमल करार दे, उसे माज़अल्लाह अल्लाह की तरफ कैसे मंसूब किया जा सकता है। लिहाजा इस किस्म के याद का ऐसा तर्जमा भी नहीं करना चाहिए जिससे अल्लाह गुनाह करने वाला करार पाए। सीधा कर देते हैं ना, अल्लाह जिसे चाहे अल्लाह गुमराह करता है, जिसे चाहे अल्लाह हदायत देता है। यही तर्जमा, तो तर्जमा जब आएगा सामने तो क्या नतीजा निकलेगा। ये बड़ा एक अलमिया है। हम कहते हैं वो कुरान को तर्जमे के साथ पढ़े, बिल्कुल तर्जमे के साथ पढ़े आप। अगर जब तर्जमा ये होगा तो फिर क्या नतीजा निकलेगा। चलें, फिर भी कहूँगा कि तर्जमे के साथ पढ़ें, 2-3 कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें अगर तौफीक हो, हिम्मत हो। इसी तरह इन 99 नामों में अल मुइज़्ज़ो इज्जत देने वाले के साथ अल मुज़िल्लो जिल्लत देने वाला, या अल नाफिओ के साथ अदर्रोन नुकसान पहुंचाने वाला भी शामिल कर दिए जाते हैं। जिन्हें याद से इस किस्म के नामों को अख्ज़ किया जाता है, उनका सही मफहूम सामने आने से यह हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ना किसी को यूं ही जलील करता है और ना नुकसान पहुंचाता है। अगर ऐसा होता है, ये कानून मशीयत के मुताबिक ऐसा होता है। जिल्लत और ज़रर इंसान के अपने अमाल का नतीजा होता है। ये लिहाजा ये इस किस्म के नामों को अल अस्माउल हुस्ना की फहरिस्त में शामिल न किया जाए। जिल्लत और ज़रर इंसान के अपने अमाल का नतीजा होते हैं। बहुत गौर तलब बात है। सूरह निसा की 79 नंबर है। जो भी तुम्हें अच्छाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से, जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचता है, यहाँ ये नुकसान से मराद ले ले आप जिल्लत और ज़रर, वैसे नुकसान पहुंचता है वो तुम्हारे अपने ही माल का किया धरा होता है, अल्लाह नहीं करता। सूरह नाम में है मैं ये शाह इल्ला हो युद लिल हो व मैं ये शाह यज अल हो आला सिरत मुस्तकीम, अनाम 39। इसका तर्जमा किया जाता है अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। बड़ी गौरतलब बातें हैं मेरे भाइयों। यह तर्जमा बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा करता है। आयत का मफहूम यह है कि हदायत और गुमराही खुदा के कानून मशीयत के मुताबिक मिलती है, यह है सही तर्जमा। लेकिन जब यह कहा जाता है ऊपर जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है, तो फिर क्या बनता है, वो फाइल अल्लाह बन गया और ये गुमराही अल्लाह की तरफ मंसूब हो गई, मिलती है। इसके मुताबिक जो शख्स चाहे सही रास्ता इख्तियार कर ले, जो चाहे गलत रास्ते पर गामजन रहे। वो कानून मशीयत क्या है, ये जानना है। इसकी वजाहत इस आयत के इब्तदाई अल्फाज में यूं कर दी गई कि वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मु व बुकमुन फिज़ ज़ुलुमात, 39 नंबर आयत अनाम की। जो लोग कवानीन खुदाबंदी की तकजीब करते हैं वो बहरे और गूंगे बनकर तरीकियों में भटकते रहते हैं। ये वजह है उनके गुमराह होने की, ये वजह बता दी गई है। ये आयत सूरत अनाम की 39। जो लोग कवानीन खुदाबंदी की तकजीब करते हैं, ये वजाहत कर दी गई साथ। इसलिए ये वो दुरुस्त बात, वो ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है। जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगाता है, जिसे था मफहूम हदायत और गुमराही अल्लाह के कानून मशीयत के मुताबिक मिलती है। मशीयत ये आगे बता दी गई कि उसके कवानीन की तकजीब करते हैं। बहर क्या तकजीब करते हैं, बहरे और गूंगे बनकर तरीकियों में भटकते रहते हैं। जो खुद ही बहरे बन जाए, गूंगे बन जाए, अंधे बन जाए, उनको कौन रास्ता दिखा सकता है। सूरह रूम में है फमन यहदी मन अदल्लुल्लाह, इसका आम तर्जमा किया जाता है जिसे खुदा गुमराह कर दे उसे कौन हदायत दे सकता है, लेकिन इसका मफहूम ये नहीं। इसका मफहूम आयत के इब्तदाई अल्फाज से वाज़ेह हो जाता है जिनमें कहा गया है बलित्तबा अल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिगैर इल्मिन। ये 200 सूरह रूम की 29 नंबर 29। ये जालिम बगैर इल्म बसीरत अंधाधुंध अपने हवानी जज्बात का इत्तबा किए चले जाते हैं। अब सोचो कि जो शख्स कानून खुदाबंदी की रूह से इस तरह गलत रास्तों पर चलता जाए, उसे कौन राह रास्त पर ला सकता है। सूरह तौबा में है कि वामा कान अल्लाहु ले यो दिल्लो कौमन बादा इज हादाहुम हत्ता जो बेये ना लाहुम्मा यत्तकून। ये सूरह तौबा की 115 नंबर। ये अल्लाह के शान ही नहीं, ये बड़ी अहम बात है कि वो लोगों की तरफ अपनी रहनुमाई किताब भेज दे
اور इस तरह ये वाज़ेह कर दे कि उन्हें किन अमूर से बचना चाहिए, और उसके बाद उन्हें यूं ही गुमराह कर दे, खुद ही गुमराह कर दे, खुद ही किताब हदायत दे कि तुमने इसके मुताबिक चलना है, और खुद ही गुमराह कर दे। कैसी बात है। इससे अगर लोगों को गुमराह करना होता तो उनकी तरफ हदायत के ज़ाब्ते क्यों भेजता, ये किताबें क्यों भेजता, ये अंबिया कराम का सिलसिला क्यों शुरू करता, अगर उसने ही लोगों को गुमराह करना है। सूरा नाम में है वमन रे दिल्ला हो यह दे याहू यशरह सदरहू लिल इस्लाम वमन रिद अन दिल्लाहू यजल सदरहू दे कन हरजन कान्नमा यसद्दा दो फिस्समाए कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून। ये सूरा नाम की 125 नंबर आयत। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा यूं किया जाता है। देखिए ना, जब लफ्ज़ी तर्जुमा होता है तो ये भी गड़बड़ हो जाती है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बाज़ जगह मफ़हूम बयान करना पड़ता है। अल्लाह जिस शख्स को हदायत देने का इरादा करे उसका सीना सलाम के लिए कुशादा कर देता है, और जिसे गुमराह करने का इरादा करे उसका सीना यूं तंग कर देता है गोया वो आसमान की बुलंदियों की तरफ चढ़ रहा है। फाइल अल्लाह ताला इसमें बना दिया गया है। और जिसे गुमराह करने का इरादा करे यानी कि वो खुद इरादा करे इसका सीना यूं तंग कर दे। इससे पहले आयत में इन लोगों का जिक्र है जिनके सामने जब कवानीन खुदाबंदी पेश किए जाते हैं तो वो कट खुजतियां करते रहते हैं। इससे पहले ये बात बयान हो रही है, ये हैं वो मुजरम जिन्हें जिल्लत में सजा मिलती है। इसी तसलसल में मदरजा बल अल्फाज आए हैं और इन अल्फाज के बाद कहा है कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून। वही 125 नंबर है अनाम की, जो लोग कवानीन खुदाबंदी की सदाकत पर ईमान नहीं लाते इन पर हकीकत मुश्तबे रह जाती है। इससे ज़ाहिर है कि इंसानी कल्ब का खुदाई रहनुमाई के लिए कुशादा हो जाना ईमान का समरे तैयब है। इंसानी कल्ब का खुदाई रहनुमाई के लिए खुल जाना, खुला होना, कुशादा हो जाना ईमान का समरे तैयब है, और इसका भींच जाना, सुकड़ जाना, तंग हो जाना इनकार का लाजमी नतीजा है। चूंकि ये कुछ अल्लाह के कानून मकाफात की रूह से होता है, कानून मकाफात की रूह से होता है, इसलिए अल्लाह ने इसे अपनी तरफ मनसूब किया है। कानून है, कानून उसके हैं सारे, कानून मशीयत है, कानून मकाफात है, वो उसके कानून है। जो उसके कानून के मुताबिक होता है वो बाज़ का तो उसको अपनी तरफ मनसूब कर लेता है, उसका यही नतीजा निकले, तो नतीजा उसके हाथ में है। बंदे का अमल बंदे का और उसका नतीजा अल्लाह के हाथ में है, वो बंदा नहीं उसको बदल सकता। तो नतीजे के तौर पर वो चीज़ सामने आ जाती है तो उसको अल्लाह ताला अपनी तरफ मनसूब कर लेता है। मकाफात की रूह से होता है इसलिए अल्लाह उसे अपनी तरफ मनसूब किया। कल्ब की बस्तों के शाद बंद हो जाना और खुल जाना इंसान के अपने जाविया नगाह के मुताबिक होती है। अब देखिए खुल जाना, और ये अब बंदे की तरफ कहा जा रहा है कि जाविया नगाह से होती है। चुनाचे सूरह नहल में है, कहा गया है। अब देखिए जो शख्स मान लाने के बाद फिर कुफर की तरफ पलट जाए इस पर अजाब अजीम वारद होता है। याद रहे ये उस शख्स के मतलब नहीं कहा गया जिसका कल्ब ईमान पर मुतमिन हो लेकिन उससे कुफर का कोई काम जबरदस्ती करा दिया जाए। ये उस शख्स के मतलब कहा गया है मन शारहा बिल कुफरे सदरन। ये नहल की 106 नंबर है, जो कुफर के लिए अपना सीना खोल दे। अब देखिए कुरान पाक ही है ना, उसी की याद है। मन शारहा बिल कुफरे सदराओ, सीना अपना खोल दे, किसके लिए? कुफर के लिए। ये बंदा खोलता है, खोल दे, सीना खोल दे। देखिए यहाँ वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि इंसान कुफर और ईमान के लिए अपना सीना खुद ही खोलता है। यहाँ कुफर की बात है, ईमान के लिए भी खुद ही खोलता है और बंद करता है, दोनों काम बंदा खुद करता है। अल्लाह अपनी किताब के जरिए राह हिदायत नुमायां कर देता है। जो अपने सीने के कुशाद से इसे अपने कल्ब में समो लेता है इस पर कामयाबियों की राहें वाह हो जाती हैं, खुल जाती हैं। जो अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेगा
लेता है वो इन सादतों से महरूम हो जाता है। ज़ालिका हुदुल्लाह है यहदी बिही मन यशाअ व मन युद्लिल लिल्लाहु फमल्लाहु हुव हादिन। ये 39 नंबर सूरत है और 23 नंबर इसकी आयत है। 39 नंबर याद नहीं, फातर है गालबन। इस तरह अल्लाह हर उस शख्स के सामने कामयाबियों के रास्ते कुशाद कर देता है जो कामयाबियां हासिल करना चाहे। जो ऐसा ना चाहे उस पर ये दरवाजे बंद रहते हैं, और जिस पर ये दरवाजे अल्लाह के कानून मशीयत के मुताबिक बंद रहें उसे कोई भी सही रास्ता नहीं दिखा सकता। जो शख्स खुद ही अपनी आंखें बंद कर ले उसे कौन बनाई अता कर सकता है। ये देखिए ना, कोई भी सही रास्ता नहीं दिखा सकता। जब कहा गया तो जो खुद ही अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, गूंगा हो जाए, बात सुने ही ना, अपनी आंखें बंद कर ले, उसे कौन बनाई कर सकता है। यानी कि सब कुछ बंदा ही करता है। देखिए आगे है ये नहल की 37 नंबर है। फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युदिल्लु, है जो खुद ही गुमराह रहना चाहे उसे अल्लाह हदायत नहीं देता। इतनी वाज़ेह बात है, जो खुद ही गुमराह रहना चाहे उसे अल्लाह जबरदस्ती हदायत नहीं देता। किसे देता है? दूसरी तरफ वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ये अनकबूत की 69 नंबर आयत है। जो लोग हमारे बारे में सही व काविश और जिद्दोजहद करते हैं हम उनकी रहनुमाई अपने रास्तों की तरफ करते जाते हैं। ये अनकबूत, ये देखें यहाँ कहाँ करता जा रहा है, जो सही और कोशिश जिद्दोजहद करता है उसकी तरफ जाने की, उसके लिए रहनुमाई के रास्ते खुलते जाते हैं। जो खुद ही गुमराह रहना चाहे हैं उसे जबरदस्ती हदायत नहीं। अल्लाह किसी का बाजू पकड़कर ना किसी को गुमराह करता है ना हदायत देता है, बंदा खुद ही सब कुछ करता है। वज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये है अल्लाह का दीन, ये है सीधा दीन, सीधी बात। तो इसमें बस कितनी बातें अर्ज कर दी, मकसद बात अनुमान एक ही था कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत है। मगर देखिए हमारा हाल, हम क्या करते हैं। तर्जमे देख लें, अब कुरान की बात वो बात कर चुका हूँ, कुरान के तराजम को देख लें आप, उनकी आगे तफसीर को देख लें, तो ये सब कुछ हो रहा है। जैसे एक तरह से मना किया जा रहा है और मना होना चाहिए हमें। अगर करेंगे तो ईमान ज़ाय हो जाएगा। अल्लाह के बारे में ऐसे अल्फाज, अल्लाह ताला के बारे में ऐसा कहना, ये ईमान को ज़ाय करने के मुतरादिफ है। ईमान ज़ाय हो गया तो आगे ईमान क्या बने, बचेंगे कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, मेहरबानी आपने मेरी बात सुनी, गौर से ये बातें सुनने वाली हैं। आगे भी इंशाल्लाह बहुत ही अहम मौजू आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा। तो ये बातें, मेहरबानी आपने मेरी बात सुनी। अल्लाह सब पर रहम करे और हमें सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए। फ़िक्र भी इबादत है, हमें फ़िक्र करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।